So, welcome to the students. Good evening, and this is the next lecture of the series जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया आपका वेंडिंग स्ट्रेस का जो सीरीज है, and this lecture pertains to the numericals of combined axial load and bending. अब जो मैंने इसका कंबाइंड एक्सियल लोड एंड बेंडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया था, आपको एक्सप्लेन किया था, उसके आगे वाला लेक्चर सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर्टेन टू दिस दैट आई एम टेकिंग अप टुडे. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. तो कंबाइंड एक्सियल लोड एंड बेंडिंग के केस में हमारा ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ए लिंक इज अंडर ए पुल which lies on one of its faces. This is you can say link, right? And it lies on one of its faces. The magnitude of the maximum tensile and compressive stresses in the link is. But we have to find out. We have to find out the maximum tensile stress का magnitude and the maximum compressive stress का magnitude. अब link का क्या दिया है? This is your link. This is the figure which I have shown here. So the link, this is almost a rectangular bar, you can say, right? This is a rectangular bar, and the cross section of this that is given. So this is cross section, you can say this is width of the cross section, that is 15 mm, and the height, the depth of the cross section, this is 50 mm, and length of the link that is also given. Now, if you will see the diagram, and from the diagram you will see that this axial load, that is 4 kilonewton, right? So this axial load is acting on the top surface of the link. You understand this? ये axial load जो है वो कहाँ पे ये act कर रहा है? This is acting on the top surface of the link. So this is actually the problem. What is given in the problem? Problem में क्या दिया है? There is one link जिसके ऊपर जो है there is one link, axial load is acting on the link here, right? तो इसमें क्या है आपका axial load जो है link के ऊपर, that is 4 kilonewton load that is acting on the face of the link. The cross section, this link is a rectangular bar, you can say, and the cross section of this, that is also given, that is the width of this cross section, that is 15 mm, and the depth of this height, you can say, that is 50 mm, and length of this that is given. Now we have to find out what we have to find out. We have to find out that is the maximum tensile stress. So we have to find out that जहां पे लिख लीजिए sigma T maximum, and the second one sigma C compressive, that is maximum, right? तो जब combined loading condition होगा, axial load and the bending load is acting together on a beam, bar or any structural member, उस वक्त आपका जो sigma T maximum है that is equal to ये किसके बराबर होता है? That is P upon A plus M by maximum upon I, right? P upon A, this is the direct stress, normal stress, this is the direct normal stress, and this is the bending stress, right? So in this case what happens there, when the combined axial load and the bending load is acting on the beam, so there are the two stresses will develop on the beam. That two stresses, that one stress is called the normal stress, that is sigma x, you understand, and the second stress, that is the bending stress, right? इसी तरीके से सिग्मा सी कंप्रेसिव क्या होगा? दिस इज इक्वल टू P अपॉन A माइनस M बाई मैक्स अपॉन I. So these are the equations. These are the equation when the axial load and moreover the tensile load is acting on the bar. You understand? ये जो रिलेशन है ये क्या है? जब आपका एक्सियल लोड जो है बार के ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट? इफ द कंप्रेसिव लोड इज एक्टिंग ऑन द बार, इसमें क्या था? टेंसाइल स्ट्रेस था, यू अंडरस्टैंड? टेंसाइल लोड था,
अगर आपका कंप्रेसिव लोड होगा उस वक्त these equation for you can say टेंसाइल लोड, you understand, ये किसके लिए है, जब टेंसाइल लोड इज एक्टिंग ऑन द मेंबर, you understand। तो फॉर अगर कंप्रेसिव लोड की बात करें, फॉर कंप्रेसिव लोड, अगर आपका लोड जो है मेंबर के ऊपर क्या है, कंप्रेसिव है, बट इट इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंट्राइड, it is passing at some distance from the centroid. This is also the condition, you understand। ये टेंसाइल लोड में क्या कंडीशन था, इसमें आपको ये कब आपको ये कंडीशन मिलेगी जिसमें आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी आपको मिलेगा और साथ में आपको डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलेगा। दैट कंडीशन इज व्हेन द टेंसाइल लोड और द कंप्रेसिव लोड दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस or not passing through the centroid, but it is passing at some distance from the centroid, you understand। so this is the condition। अगर आप इस फिगर को देखें तो जहां पे ये कंडीशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका जो इसका CG होगा इट इज जस्ट लाइक दिस, ये आपका इसका एक्सिस होगा, you understand, ये इसका इस तरीके से एक्सिस होगा, but this load is not passing through the centroid, it is passing at some distance, means at on the face, top face of the centroid। तो centroid के top face के ऊपर ये जो है लोड एक्ट कर रहा है। so the load is not acting on the centroid when the conditions are like this, as I told you। in this case, in such cases what happens, we will get the two stresses, that is direct normal stress as well as the bending stress, and then these two stresses are added algebraically, as I told you in the detail, that the stresses are the tensor quantity and how we can add them when they are acting on the same plane and acting in the same direction, then we can add these stresses algebraically, you understand। so this is your sigma tension maximum क्या है, J होगा, और कंप्रेसिव मैक्सिमम क्या होगा, सिग्मा कंप्रेसिव मैक्सिमम क्या होगा, J होगा, when the load is tensile। और जब कंप्रेसिव लोड होगा उस केस में आपका जो सिग्मा मैक्सिमम टेंशन जो है, राइट, सिग्मा मैक्सिमम टेंशन, उसकी इक्वेशन होगी P/A। ये तो सेम रहेगा, ये तो मैंने आपको पूरा पीछे आप मेरा लेक्चर देखिए, उसमें यू विल क्लियर, उसमें पूरा आपको ड्रा करके बताया है। P/A कंप्रेसिव लोड है तो माइनस, दिस इज कंप्रेसिव लोड है तो ये आपका सिर्फ ये साइन जहां पे चेंज होगा, माइनस P/A प्लस M बाई मैक्स/I, राइट। और जो दूसरी इक्वेशन होगी सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव, दिस इज अगेन माइनस P/A एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस M by max/I, you understand। so these are the four equations you have to remember। ये जो आज मैं न्यूमेरिकल इनके करने जा रहे हैं, ये आप चार इक्वेशंस जो हैं ये क्या करें, याद कर लें, और इसका मैंने बता भी दिया है कि हाउ वी विल गेट दिस, व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ वी कैन गेट द कंबाइंड एक्सियल लोडिंग एंड बेंडिंग when the axial load is not passing through the centroid, but it is passing at some distance of the centroid, or you can say it is having the centric distance, centricity इसमें होगी। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि we will not get the only the axial stress or tensile stress, we will not get that, but we will there will develop two types of the stresses। वन आपकी जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और उसके बाद साथ में आपकी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो जो आपकी कंबाइन इसको करके अगर मुझे सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल निकालना है, सो दिस इज द इक्वेशन, एंड सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव निकालना है, दिस इज द इक्वेशन। और अगर आपका कंप्रेसिव लोड होगा जहां पे क्या है, एक्सियल लोड है बट टेंसाइल लोड है, अगर आपका कंप्रेसिव लोड होगा तो उस केस में जो आपकी इक्वेशंस होंगी वो क्या होगी, माइनस P/A। सिर्फ ये आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कंप्रेसिव है।
तो इसका कंप्रेशन में है तो इसलिए ये माइनस साइन लगेगा। बाकी आप इसको डिटेल में देखने के लिए मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा एंड देन यू कम टू अंडरस्टैंड rest everything is same. You understand? So this is the equation. You first note down this, you first note down these equations and then we will start the problem. You understand? अब हम बेसिक इसकी प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। अब इसका हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटा दीजिए, वी डोंट नीड दैट, फिगर रहने दीजिए, बाकी आप मिटा दीजिए। तो आपको पता लग गया क्या है जहां पे, मींस एक आपको लिंक दिया है आपका, जिसमें इसका लेंथ दिया है, कितना लेंथ है आपका 500 mm, जो क्रॉस सेक्शन का विड्थ और जो डेप्थ दिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम सीधा निकाल लेते हैं इसका। तो विड्थ कितना है लिख लीजिए, विड्थ जो है बी से डिनोट करेंगे, दैट इज 15 mm एंड द डेप्थ दिस इज इक्वल टू 50 mm। सो दिस इज द लिंक जिसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ आपको मिला है। नाउ दिस लिंक इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स फेस, ठीक है, ये फेस के ऊपर लाई कर रहा है, और टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेस उसके टॉप सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही है। यू अंडरस्टैंड? तो इसकी अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये फिगर अगर मैं फ्रंट से देखूं तो ये फिगर इस तरीके से बनेगी। ये आपकी बार है, यू अंडरस्टैंड, ये आपकी बार है, और ये क्या है, ये इसका एक्सिस है, सेंट्राइडल एक्सिस, राइट, ये इसका बार का सेंट्राइडल एक्सिस है। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए जो लोड दिया है उसने, लोड यू कहां पे है, वो टॉप के ऊपर एक्ट कर रहा है, जहां पे आपका लोड जो है, ये लोड आपका जहां पे एक्ट कर रहा है टॉप के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए load is not passing through the centroid, but it is passing at some distance of the centroid। तभी तो ये इस केस में अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमारे पास ये केस होगा कंबाइंड लोडिंग कंडीशन का, कंबाइंड लोडिंग कंडीशन मिलेगी हमें, एक्सियल लोड एज वेल एज द बेंडिंग लोड, राइट। अब देखिए ये जहां से लेके जहां तक जो आपका था, ये आपको दिया है कितना, 50 mm दिया, कितना ये दिया ना क्रॉस सेक्शन में, कितना है 50 mm, ये दिया है आपको 50 mm। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी इंसेंट्रिसिटी है, ये और ये आपका E जो है कितना है, 25 mm हो जाएगा, मींस इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 mm फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस और फ्रॉम द सेंट्राइड। यू अंडरस्टैंड? तो E की वैल्यू हमें मिल गया, तो E कितना हमें मिल गया, E हमें मिल गया, दैट इज E दिस इज इक्वल टू 25 mm। यू अंडरस्टैंड, राइट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी विल ट्रांसफर द लोड टू दिस सेंट्रोइडल एक्सिस। हम क्या करेंगे, सेंट्राइड के ऊपर लोड को ट्रांसफर करेंगे। जब लोड को हम सेंट्राइड के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका राइट, तो आप इसको, ये आपका क्या है, दिस इज एक्सिस, राइट। अब आप क्या करेंगे, लोड को, दिस लोड दैट इज ट्रांसफर्ड ऑन दिस, जब इसको लोड को आप इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो एक क्या आएगा, आपका लोड आएगा, एक्चुअल लोड P, और एक आपका क्या आएगा, एक आपका एक्चुअल लोड आएगा, और दूसरा आपका क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, राइट। दूसरा आपका क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। एक आपका एक्चुअल लोड और दूसरा ये आपका आ गया
m मोमेंट, राइट। तो m कितना होगा, जो आपका m आएगा इसमें, m कितना होगा, दैट इज p इंटू ई, राइट। m कितना होगा, p इंटू ई। p is the load, that load which is being transferred from this top surface to here, and e is the eccentricity, कितना डिस्टेंस है ये। तो इसका मतलब है m आपका आ गया, p कितना है, सॉरी, p आपका है 4 इंटू 25, so this is equal to 100 किलो न्यूटन mm, राइट, 100 किलो न्यूटन mm। तो ये आपको P इंटू ई की वैल्यू भी आ गई, यू अंडरस्टैंड। अब हमें क्या निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है सिग्मा मैक्सिमम टेंशन में। ये क्या होगा, P अपॉन ए प्लस m बाई मैक्स अपॉन आई, दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए P हमारे पास है, A हमारे पास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B इंटू डी आपका आ जाएगा, A हमारे पास है, M भी आपने निकाल लिया। अब बाई मैक्सिमम देखिए, अब बाई मैक्सिमम क्या आएगा, बाई मैक्सिमम लिखे यहां पे, बाई मैक्सिमम, दिस इज योर सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट, एंड द लोड इज एक्टिंग हियर। तो जहां से लेके जहां तक कितना है, 50 mm है, तो इसका मतलब जो वाई मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, जहां से जहां तक 25 mm होगा, तो वाई मैक्सिमम भी आपका कितना आएगा, 25 mm मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस। वाई मैक्सिमम क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस और द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो जहां पे हम लोड था, तो द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस और द न्यूट्रल एक्सिस दैट इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, वाई मैक्सिमम भी आपका निकल गया, और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए। दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, यू अंडरस्टैंड। ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका जो मोमेंट होगा बी डी क्यूब बाई 12 और बी एच क्यूब बाई 12, यू अंडरस्टैंड। ये हमारा इसका ये होगा, बी कितना है, बी आपका 15 है, 15, डी कितना है 50 क्यूब एंड ओवर 12, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें आपके पास मिल गई। नो यू पुट ऑल दीज थिंग्स इन योर इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। देयरफॉर अब लिखिए सिग्मा मैक्सिमम टेंशन, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज योर पी, P is 4 kilonewton, 4 into 10 raised to power 3, and what is your area? Area that is B into D. This is a rectangular cross section, तो ये आपका आ जाएगा 50 into 15. You understand? So this is your rectangular cross section, and your area is right plus अब क्या है m, what is your m, this is 100 किलो न्यूटन, that is 100 into 10 raised to power 3, right, 100 किलो न्यूटन। what is your y maximum, this is 25, दिस इज 25, बाई मैक्सिमम कितना है 25, और आई कितना हो गया आपका, आई इज 15 इंटू 50 बाई 12, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ गया, इसे आप कैलकुलेट करें तो सिग्मा मैक्सिमम आप इधर से ऊपर भी ले सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम टी दिस इज इक्वल टू, इसको कर लीजिए आप,
दिस इज ये वाला आया 5.33, इसको लिख लीजिए पहले आप। दिस इज 5.33 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लें। And this is 16. So this is your 16. तो आपका सिग्मा मैक्सिमम टेंशन में आएगा 21.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका आ गया सिग्मा मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड? करेक्ट। तो सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन ये आप नोट कर लीजिए। दिस वी हैव कैलकुलेटेड। इसको मिटा देते हैं। और सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा, बाकी सेम होगा, सिर्फ आपने माइनस साइन जहां पे लिखना है और सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। तो सिग्मा मैक्सिमम टेंशन आ गया ये। So sigma maximum compression, this is equal to, क्या इक्वेशन है इधर ऊपर लिख लेते हैं, P upon A minus M by max upon I, right? And this is equal to 4 into 10⁻³ 50 into 15 plus, sorry, minus कितना है, m सेम है, m आपका आ गया 100 किलो न्यूटन 25 और I कितना है 15 इंटू 12 ऊपर लिख लीजिए आप ये वाला, राइट। तो ये कैलकुलेट करके आपका ये 5 आया था एंड आई थिंक दिस इज ये आपका आया था 5.33 समथिंग, 5.33 माइनस एंड दिस इज आई थिंक दिस इज 16 समथिंग, राइट। सो दिस इज योर 16, यस, एंड दिस वाज योर, ये कैलकुलेट अभी किया था 16, तो आपका ये क्या आया, this is minus 10.67 Newton per meter square. You understand? So this is your sigma maximum compression. ये आपका आ गया sigma maximum compression. तो I think this question is clear to you. ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। This is a very good question also, जहां पे सिर्फ एक पॉइंट था कि जहां पे जो एक्चुअल लोड था दैट इज गिवन ऑन द टॉप सरफेस ऑफ दिस। तो टॉप सरफेस का मतलब है कि जहां पे ये इस तरीके से टॉप है, जहां पे लोड है, तो जहां पे तो ये लोड, तो जहां से जो अगर इसका अगर हम इस तरीके से हाइट लेंगे, अगर ये जहां पे है तो इसका जो डेप्थ होगा वो जहां पे है या इस साइज के ऊपर है सेम होगा। सो दिस इज ओनली द स्मॉल यू कैन से कंसेप्ट हियर।
rest everything is same, and this is the way that how we will calculate the problems. तो इसमें आपका सिग्मा मैक्सिमम टेंशन एंड सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों we have calculated. You understand? अब सेकंड क्वेश्चन इसका लिखिए. So let us see another problem. So look, the problem is cast iron link is 40 mm wide this is 40 mm wide and 2 mm height, right? तो इधर लिख लेते हैं हम. तो कितना वाइड कितना है, बी आपको दिया है क्रॉस सेक्शन का, दैट इज 40 mm, राइट, एंड हाइट जो है दैट इज h, दिस इज गिवन एज 200 mm, right, whereas length is also given, length of the link, this is 500 mm. The allowable stresses, देखिए, the allowable stresses are 40 MPa in tension. जो आपको गिवन दिया है उसने दिया है कि allowable stresses जो है क्या है, फर्स्ट दिया है 40 MPa in tension. अगर टेंशन लोड होगा तो कितना है 40 MPa. Allowable stresses is 40 MPa in tension. 40 MPa, ये इसको ऐसे लिखा, 40 MPa in tension. और सेकंड दिया है 80 MPa in compression. कितना कंप्रेशन में कितना है 80 MPa in compression, right? So these things are given here. One more thing is given. Compute the largest compressive load P. हमें we have to find out that the maximum compressive load P. लिंक के ऊपर कितना हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड होगा, ताकि ये लिंक जो है इस लोड को क्या करे, इसको सस्टेन कर सके, लिंक आपका फेल ना हो. तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट, मींस आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी आपको फाइंड आउट करना है. इफ पी इज द लोड, सपोज ये आपका लोड क्या है, पी है. इफ पी इज द लोड एंड यू हैव टू फाइंड द लोड पी, दैट कैन बी अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द लिंक. ये लिंक के एंड के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं along the longitudinal axis. So it is just like this axis जो that is shown here, that is located 150 mm above the bottom link. तो bottom link जो है, this is the bottom link, और bottom link से ये कहां पे लोड लग रहा है, that is at 150 mm from the bottom link. तो लोड आपका दिया है from the bottom link, लिख लीजिए, load acting from the bottom link कितना, इसका है 150 mm. तो ये चीजें आपको दिया है, यू अंडरस्टैंड. तो ये चीजें हमने यहां पे लिख ली. नाउ इसको मिटा दीजिए. अब देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड हियर, द लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड द हाइट ऑफ द लिंक इज गिवन, राइट. तो लिंक का आपको क्या दिया है, हाइट आपको, इसका हाइट या डेप्थ दिया कितना है, ये आपका 200 mm है, यू अंडरस्टैंड. ये कितना है 200 mm, और ये बॉटम से जहां तक ये जो जहां तक एक्ट कर रहा है दिस इज 150. अगर ये 200 mm है तो सेंट्रोइडल एक्सिस ये कहां पे पास करेगा, 100 mm.
सेंटर क्या होगा इसका 100 mm। इसका मतलब है कि फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस जो लोड आपका है वो कहां पे है, अगर जहां से लेके जहां तक 150 है तो जहां से लेके जहां तक कितना होगा 150 माइनस 100 दैट इज 100। तो इसका मतलब है कि हमें ई आपका जो है वो कितना हो गया 50 mm, राइट। ई आपका 50 mm हो गया और बाई मैक्सिमम भी आपका कितना हो गया, बाई मैक्सिमम भी आपका 50 mm हो गया। बाई मैक्सिमम क्या है, बाई मैक्सिमम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर। तो फाइबर नहीं है जहां पे हम वी जस्ट टेकिंग हियर द लोड वेयर इट इज एक्टिंग, तो जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना होगा बाई मैक्सिमम दैट इज 50 mm। यू अंडरस्टैंड। तो ये दो चीजें हमें मिल गई। अब देखिए अगर इसी को एक फिगर और ड्रा कर लेते हैं। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका ये है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी विल डू, वी जस्ट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हियर टू हियर। तो हम क्या करेंगे, लोड को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द ऑन द एक्सिस ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर। तो लोड आपका ये ट्रांसफर होगा, ये सॉरी कंप्रेसिव लोड है, जस्ट लाइक दिस। और ये आपका जहां पे होगा ये पी जहां पे आ गया, एक तो लोड आप मिलेगा और दूसरा हमें क्या मिला, व्हाट वी हैव गॉट, हमें क्या मिला, दूसरा हमें मूवमेंट मिला। यू अंडरस्टैंड। तो सेकंड व्हाट वी हैव गॉट मूवमेंट लाइक दिस m, राइट। तो हमें क्या मिला, मूवमेंट मिला दैट इज m। यू अंडरस्टैंड। तो m कितना होगा, m क्या है, इधर लिख लीजिए m दिस इज इक्वल टू p इंटू ई। तो p तो हमारे पास वैल्यू है नहीं, तो m हम लिख सकते हैं p इंटू 25। यू अंडरस्टैंड। हमारे पास m की वैल्यू भी आ गया। जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ये क्रॉस सेक्शन क्या है लिंक का, दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसमें आपको विड्थ और हाइट भी दिया है, तो कितना दिया है इसने 40 इंटू 200 दैट इज गिवन हियर, यस। तो ये कितना है क्रॉस सेक्शन, इसको दिया 40 इंटू 200 mm स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड। सो दीज थिंग्स वी हैव गॉट। नाउ हमें ये सारी चीजें मिली हैं, दैट वी हैव रिटन हियर ऑल दीज थिंग्स। नाउ अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। अब हमारी देखिए हमें अलोएबल स्ट्रेसेस क्या दिया था 40 MPa इन टेंशन। तो पहले सबसे पहले तो क्या लिखे, एक इक्वेशन लिखे सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन क्या है, दैट इज P अपॉन A प्लस P अपॉन A प्लस M बाई मैक्स अपॉन I। So this is the equation, right? Now substitute the values here. इसको आगे यहीं से कर लेते हैं R, जहां से कर लेते हैं P क्या है, what is your P? P तो P ही है हमारे पास, P का कोई वैल्यू नहीं है। What is area of cross section 40 into 200 प्लस इसको ऐसे करिए, सॉरी, सिग्मा मैक्सिमम टेंशन का हमें दिया है ना, तो आप लिख लीजिए R, इसको आगे सिग्मा मैक्सिमम टेंशन कितना है दैट इज 40। तो सिग्मा मैक्सिमम टेंशन की जगह आ जाएगा 40, दिस इज इक्वल टू P अपॉन कितना A, व्हाट इज A 40 इंटू 200 प्लस what is your M, P into E, that is P into 25, M is P into E. What is Y max? Y max that is also 25
and this is BHQ/12. तो ये क्या होगा? BHQ, what is B? 40 into 200, 200/12, right? So this is sorry, we have written the wrong value here. This is from here to here. This is how much? 150. 150. I am just written wrong thing here. This is from lower to this 150, and this is the centroidal axis. तो ये आपका 200 है, ये आपका हो गया 100. तो 150 minus 120 यहाँ पे, sorry, again I am just saying 20. This should be E की वैल्यू आपकी जो थी, जैसे 50 mm लिखा था, तो कहाँ से मैंने ये बाई मैक्सिमम 50 mm, ये कहाँ से मैंने लिख दिया 25 एक्चुअली. तो M आपका कितना आ गया? M आपका आ गया 50 into P, राइट? E कितना है दिस? यस. This is 50, right? And what is your E? E is also 50, right? E is this by maximum. ये मैंने, because we have to take from the bottom of the link लेना था. This is given in the problem which I have just slip here. तो bottom of the link क्या होगा? by maximum, जहां से लेके जहां तक कितना होगा? 100 होगा. So by maximum this is equal to 100, right? तो ये confusion नहीं था, ये actually थोड़ा सा slip हो गया error से, because they have given the value of the by maximum from बॉटम, जो हमें बॉटम ऑफ द लिंक से हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं. 150 कहां से है? दिस इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिंक. तो बाई मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 100 mm. तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. बाई मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू 100 mm. ये आपका आ गया 100. यू अंडरस्टैंड? अब जहां से आप में पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो P को भी मैं किलो न्यूटन में ले लेता हूं. अगर मैं P को किलो न्यूटन में, ये आपका P कहां से था? किलो न्यूटन में था. तो P इंटू 10⁻³ को कन्वर्ट करता हूं, बिकॉज P हमने कहां से कैसे लिया है? किलो न्यूटन में लिया है. तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप. This is equal to P into 10⁻³ because this is taken as in किलो न्यूटन. P की वैल्यू किस में दी है? किलो न्यूटन में दिया है. P किलो न्यूटन में है. इसको मैं न्यूटन में चेंज करता हूं अपॉन A. A क्या है? व्हाट इज योर A? दैट इज 40 into 20 प्लस, इधर भी आप किलो न्यूटन में चेंज कर लीजिएगा. यह आ गया आपका P इंटू 10⁻³ इंटू 50 इंटू 100, 12 ऊपर ले जाइए, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 200 रेज़्ड टू 3. तो इसकी जहां से आप P की वैल्यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, यहां से आप P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें. जस्ट कैलकुलेट दिस.
this is your compressive load. Right, this is your compressive load basically. तो P की वैल्यू कर लें. सो P कितना आया आप चेक कर लीजिएगा. दिस इज 640. P इज 640 किलो न्यूटन. राइट, P की जो वैल्यू है दिस इज 640 किलो न्यूटन. कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर से एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P लाइक दिस. यू अंडरस्टैंड. तो ये आ गया फर्स्ट केस में सिग्मा मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दिस इज 640 किलो न्यूटन. यू अंडरस्टैंड. अब सेम पैरामीटर्स हैं एंड वी विल कैलकुलेट वैल्यू द सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव. सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा माइनस P अपॉन A, बिकॉज इट इज ए कंप्रेसिव लोड ना. इट इज ए कंप्रेसिव लोड, सो वी विल टेक द साइन माइनस P अपॉन A. यू अंडरस्टैंड. तो जहां पे हमें कंप्रेसिव लोड है तो माइनस P अपॉन A लेना पड़ेगा. एक्चुअल लोड में हम माइनस नहीं लेते बट बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो जो कंप्रेसिव होगा जो थ्रू आउट कंप्रेसिव होगा तो ये माइनस P अपॉन A लेंगे. यू अंडरस्टैंड. तो जो पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें मैंने मिस्टेकन मैंने टेंसाइल लोड का P अपॉन A किया बट लास्ट बाद में मैंने उसको माइनस P अपॉन A किया एंड दिस इज द रीजन बिकॉज वी हैव टेकन द कंप्रेसिव लोड. तो इसमें दूसरा क्या होगा माइनस M बाई मैक्सिमम अपॉन I. यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द कंप्रेसिव लोड का जो इक्वेशन होगा. तो इसमें देखिए इसमें आपका सिग्मा अलोवेबल स्ट्रेस कंप्रेसिव में कितना दिया है 80 MPa. तो आप जहां पे क्या पुट करें 80. दिस इज इक्वल टू माइनस P इंटू 10⁻³ जैसे पहले लिखा आपने. और एरिया कितना है इसका 200 इंटू 40 माइनस M कितना था 50 इंटू P इंटू 10⁻³ बाई मैक्सिमम कितना है फ्रॉम द लोअर जहां से लोअर लिंक से जहां तक ये जो होगा ये 100 mm ये आपका हो क्या होगा बाई मैक्सिमम. यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज योर बाई मैक्सिमम. ये आपका कितना आ गया 100 एंड I कितना है I वही हो गया BH3/12. B कितना है 40 इंटू 200³ तो 12 को आप बोले. तो इसको अगेन आप सॉल्व कर लीजिए फॉर P के लिए. इसको सॉल्व करें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P. सो चेक कर लीजिए मेरा P है 256 किलो न्यूटन. दिस इज P 256 किलो न्यूटन. यू अंडरस्टैंड. तो ये दो वैल्यू P की हमारे पास आ गई. यू अंडरस्टैंड. एक P का वैल्यू कितना है पहले केस में 640. यस. तो इसको आप यहां पे लिख लेते हैं अच्छे तरीके से. ये आपने कैलकुलेट किया तो यहां पे क्या किया आपने दो वैल्यूज निकाल ली. अब वी हैव टू सी
कि मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कितना होगा कि हमारा लिंक जो है सेफ है। अब देखिए, जब अलोएबल स्ट्रेस जो थी इन टेंशन में, जब टेंशन में थी कितनी थी 40 MPa और इस पे लोड आया आपका 640 किलो न्यूटन। पी की वैल्यू कितनी आई 640 किलो न्यूटन। तो एल फर्स्ट। सेकंड देखिए अलोएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन जब मैंने ये वैल्यू ली, इसको पुट किया, उस वक्त हमारी लोड की जो वैल्यू आई थी दैट इज 256 किलो न्यूटन। अब now we have got the two values of the load. Now you have to understand the concept of this question now. Now we got the two value of the load, but we have to choose one value, means what is the maximum value on which our link that is safe. हमें ये देखना है कि इन दो लोड में से कौन सी वैल्यू हमारी होगी, लोड का जो मैग्नीट्यूड है कौन सा राइट होगा, सही होगा, जिसके ऊपर वी कैन से कि अवर लिंक इज सेफ। तो हम या तो P640 लें या P जो है 256 किलो न्यूटन ले। अब ये हमें चेक करना है, दैट वी हैव टू सी, राइट। अब देखिए 640 का ले लेते हैं हम। अब जब लोड आपका 640 किलो न्यूटन आया, अब देखिए उसमें हमारी टेंशन में स्ट्रेस कितनी थी 40 MPa, वो क्या थी गिवन थी। क्या गिवन था आपका 40 MPa स्ट्रेस आपकी गिवन थी। और ऑन दिस स्ट्रेस, ये जो आपकी टेंशन की स्ट्रेस थी उसके ऊपर हमने लोड जो कैलकुलेट किया 640 किलो न्यूटन किया, राइट। लेकिन लिंक के ऊपर वो कहता है कि जो अलोएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन है वो कितनी है 80। यू अंडरस्टैंड। अब ट्विस्ट यहां पे ये है, ये तो 40 MPa के ऊपर ये लोड इस ओके, बिकॉज 40 MPa के ऊपर हमने इसको क्या किया कैलकुलेट किया, दैट इज 640 किलो न्यूटन। लेकिन इसके साथ साथ वी हैव टू सी द कंप्रेसिव स्ट्रेस, अलोएबल स्ट्रेस इन द कंप्रेशन, उसके ऊपर कितना था 80 है। यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो 80 स्ट्रेस था, मुझे बताइए ये जो 80 स्ट्रेस था 80 MPa इन कंप्रेशन जो हमें स्ट्रेस था, तो उस केस में हमें लोड क्या मिला, उस केस में हमें लोड था 256 किलो न्यूटन। यहां से देखिए ट्विस्ट, अंडरस्टैंड हियर 80 MPa इन कंप्रेशन के केस में हमारा लोड कितना निकला 256 किलो न्यूटन। तो अगर मेरा लोड 640 किलो न्यूटन होगा, तो जो अगर मेरा लोड 640 किलो न्यूटन होगा, 256 किलो न्यूटन के ऊपर हमारा जो स्ट्रेस है कंप्रेसिव अलोएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन कितना है 80 MPa। कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है 80 MPa, किसके ऊपर 256 किलो न्यूटन पे। तो 640 किलो न्यूटन के ऊपर क्या होगा, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो हमें लिंक के ऊपर चाहिए था, रिक्वायर्ड कितना चाहिए था हमें 80 MPa, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम ये लोड लगाते हैं 640 किलो न्यूटन लोड लगाते हैं, तो हमारा लिंक क्या होगा वो फेल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये जो एक थ्योरेटिकल पॉइंट था, जो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ। बिकॉज 640 किलो न्यूटन लोड compressive load we have calculated when we have taken the allowable stress in tension 40 MPa, right। 40 MPa का जो स्ट्रेस मैंने लिया उसके ऊपर मैंने ये लोड निकाला। यू अंडरस्टैंड। अब लिंक के ऊपर दूसरा स्ट्रेस बताता है कि allowable स्ट्रेस टेंशन में 40 होनी चाहिए
और कंप्रेसिव में आपकी कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। अब दूसरा लोड भी मैंने निकाला, दूसरा लोड मैंने जो निकाला था वो किस में निकाला था, 80 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर। यू अंडरस्टैंड, जब आपकी एलोवेबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन कितनी थी, 80 MPa, उस वक्त लोड कितना था, 256 किलो न्यूटन। बट अगर 640 किलो न्यूटन लोड होगा तो हमारा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो 80 किलो न्यूटन, 80 MPa से न्यूटन पर mm स्क्वायर से बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस थी, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन लिंक में हमें क्या चाहिए कि हमें मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस जो है वो कितनी चाहिए, 40 MPa इन टेंशन में और 80 MPa इन कंप्रेशन में हमारी ये स्ट्रेस होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो हमारा लिंक जो है फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पहला था 640 किलो न्यूटन, अगर ये लोड हम लेते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, डिजाइन जो लिंक का है वो फेल हो जाएगा। वी विल नॉट कंसिडर दिस लोड। नाउ अल्टीमेटली अगर देखा जाएगा ये लोड कंसिडर नहीं है तो ये लोड जो है ये जस्टिफाई करेगा हमारे डिजाइन को, लेकिन इसको भी हम चेक करेंगे इसी तरीके से। अब देखिए ये 256 है, 256 हमने लोड निकाला जब हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस 80 MPa था, तो उसके ऊपर मेरा लोड कितना आया, 256। यू अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे देखिए जहां पे देखिए कंप्रेसिव लोड कितना है, 256 80 MPa, तो हमारा ये जो लोड था 40 MPa टेंशन में। अब इसके ऊपर आते हैं, 40 MPa जो लोड था टेंशन में, ये कब था, जब हमारे पास 640 किलो न्यूटन लोड हमने अप्लाई किया। और अगर हमारा लोड जो है 256 किलो न्यूटन होगा, सो इट मींस दैट ये जो आपकी एलोवेबल स्ट्रेस इन टेंशन है, अगर 640 पे इतना है तो इसका मतलब 256 से इससे क्या होगी, कम होगी, विद इन द सेफ रीजन होगा, सेफ होगी। तो 256 से हमारा क्या होगा, जो हमारा एलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस है, जो टेंशन स्ट्रेस है, वो भी हमारी विद इन द पैरामीटर होगा। और बाकी कंप्रेसिव स्ट्रेस तो 256 के ऊपर 80 MPa के ऊपर तो हम निकाल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या होगा, हमारी दोनों स्ट्रेसेस जो है वो क्या होगी, विद इन द पैरामीटर होगी। अगर मैं ये लोड लेता हूं, P इज इक्वल टू 256 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड। अगर P 256 किलो न्यूटन में लोड लेता हूं तो हमारा जो टेंशन का लोड होगा, सॉरी टेंशन की जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, जो टेंशन एलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी इन टेंशन में 40 MPa से कम होगी। कैसे कम होगी, बिकॉज 40 MPa अगर जब मैंने एलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस को कंसिडर किया तो उस वक्त हमारा लोड आया था 640 किलो न्यूटन। मीन 640 किलो न्यूटन के ऊपर हमें स्ट्रेस मिला 40 MPa इन टेंशन। यू अंडरस्टैंड। तो अगर मेरा लोड कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जितना मेरा रिक्वायर्ड था डिजाइन के लिए 40 MPa मैक्सिमम मुझे क्या चाहिए, एलोवेबल स्ट्रेस इन टेंशन 40 MPa चाहिए। तो ये इसके क्या होगा, विद इन द पैरामीटर होगी, विद इन द सेफ रीजन होगा। तो हमारा टेंशन के केस में भी, टेंसाइल स्ट्रेस के भी केस में भी हमारा अगर ये लोड लेते हैं तो हमारा डिजाइन सेफ है। बाकी जो 256 है दूसरा पैरामीटर तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, बिकॉज 256 के ऊपर जो लोड आया हमारा, ये किसके ऊपर आया, 80 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेस जो थी उसके ऊपर हमारा ये आया। तो 256 किलो न्यूटन हमारा वो लोड है जिसके ऊपर दोनों पैरामीटर्स हमारे सेफ हैं, विद इन द सेफ रीजन है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा जो लोड होगा वो क्या होना चाहिए, 256 किलो न्यूटन होना चाहिए। सो P शुड बी 256 किलो न्यूटन and this is the safe load. You understand? ये क्या है, this is the safe load, or you can say maximum compressive load. safe load or जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव
लोड होना चाहिए, तो ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या किया हमें, पहले इक्वेशंस के ऊपर P की वैल्यू निकाली। पहले मैंने टेंसाइल लोड इन जो आपका था स्ट्रेसेस इन टेंशन थी, उसको मैंने लगाया, मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेंशन का फार्मूला यूज किया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और लोड की वैल्यू निकाली। उसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस का मैंने मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंप्रेशन का फार्मूला लगाया, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम दी थी हमें 80 MPa, तो वो करके मैंने दोनों केसेस को पुट करके मैंने क्या किया कि P की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या है कि हमारे पास दो वैल्यू, हमारे पास लोड की दो वैल्यू आई, यू अंडरस्टैंड। अब दो वैल्यू में से हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारी लोड की जो है हमें डिजाइन को सेफ रखेगी, हमारे लिंक को सेफ रखेगी। कौन सा लोड हमारा होना चाहिए, क्या वो 640 किलो न्यूटन जो पहला लोड की वैल्यू निकाली वो होनी चाहिए, या 256 किलो न्यूटन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन, दैट इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, बट दैट इज वेरी कंसेप्चुअल वन आल्सो। उसमें क्या था कि पहले मैं इस लोड के ऊपर आता हूं, जो मैंने 640 किलो न्यूटन लोड लिया था, ये लिया था कि जब मैंने अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस कंसिडर की थी मैक्सिमम 40 MPa के ऊपर, तो ये पैरामीटर 640 ये तो सेटिस्फाई करेगा, यू अंडरस्टैंड। बट जो 80 MPa हमारा इन कंप्रेशन में अलोवेबल स्ट्रेस था, ये पैरामीटर हमारा तब सेटिस्फाई करता है जब हमारा लोड जो है कितना आता है 256। अगर हमारा लोड 256 है तब तो हमारा ये 80 MPa इन कंप्रेशन अलोवेबल स्ट्रेस इज ओके। बट हम अभी इस लोड को चेक कर रहे हैं 640 को, तो 640 की अगर बात करें तो ये लोड तो इससे बहुत ज्यादा है, इट इज क्वाइट बिगर देन दैट। सो इट मीन्स दैट अगर मैं ये लोड लगाता हूं तो हमारी जो अलोवेबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में है वो 80 MPa नहीं होगी, बट 80 MPa से बहुत ज्यादा होगी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो हमारा लिंक का डिजाइन है वो जो हमने दिया है कि अगर हम टेंसाइल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना, ये इन टेंशन में कितना चाहिए 40 MPa और ये चाहिए कंप्रेशन में चाहिए 80 MPa, तो ये हमारा क्या होगा, अगर 640 किलो न्यूटन में लोड लगाऊंगा तो मेरा डिजाइन फेल हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर 256। तो 256 का कंप्रेसिव लोड 80 तो है ही है, लेकिन आपको पता है ये 640 के ऊपर हमारा टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना था 40 MPa। तो अगर लोड इससे कम होगा तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो 40 MPa नहीं होगा, बट उससे क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ये जो लोड था आपका 256, इस लोड के ऊपर आपके दोनों पैरामीटर्स जो है सेटिस्फाई होते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो हमारा डिजाइन जो है, अगर इस ये लोड लेते हैं तो हमारा डिजाइन क्या है, वो सेफ होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए हमारा जो हमारे रिक्वायर्ड लोड है, डिजाइंड लोड है, वो हमारा क्या होगा, P इज इक्वल टू 256 किलो न्यूटन मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड ऑन दिस लिंक, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द प्रॉब्लम, वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जहां इस प्रॉब्लम को 2 दफा मैंने आपको दोबारा इसको रिपीट करके बोला है कि हाउ वी कैन से, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये करते, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो निकाल ली है और P 256 के ऊपर टिक कर देंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा। लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो इसका फंडामेंटल है कि हाउ वी कैन चूज दिस, सो दिस इज द वे, दिस इज how we can choose the value magnitude of the load, whether this load is applicable or this load is justified. So this is the way, you understand. So this is a very important problem. I think everybody has understood it well. तो अभी एक प्रॉब्लम और इसका करते हैं, राइट। So this is another problem, very important problem and very conceptual problem, you understand. So this is a short column that is given here. The load is inclined load is acting on the short column, you understand, on the axis of the short column. The load, inclined load is acting, that is at 60 degree load is acting, and the load की जो वैल्यू है that is given as 10 किलो न्यूटन, you understand. इसके साथ जो उसका क्रॉस सेक्शन दिया है, आउटर डायामीटर कितना दिया है इसका
कॉलम का दैट इज 100 mm और इनर डायामीटर आपको दिया है इसका कितना 75 mm, राइट। शार्ट कॉलम का जो आउटर डायामीटर है दिस इज 100 mm and inner diameter this is 75 mm, right? So this is the problem and we have to find out the maximum tensile stress, but we have to find out maximum tensile stress. तो इसका लिखते हैं, अब देखिए first of all we will understand the problem. You know, we can only calculate the stresses if the load is acting parallel to the axis or on the axis or perpendicular to the axis. You understand? Or you can say either the load is axial load or the transverse load. In this case, we can find the stresses. You understand? But here, the problem is that the load is inclined. तो इंक्लाइंड लोड के ऊपर हम डायरेक्टली वी विल नॉट फाइंड द स्ट्रेसेस। तो लोड जहां पे हमें क्या दिया है, इंक्लाइंड लोड दिया है, तो इंक्लाइंड लोड होने के कारण जो है हम स्ट्रेसेस को डायरेक्टली वी विल नॉट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड द स्ट्रेसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका इंक्लाइंड लोड है दैट हैज टू बी रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट्स। तो ये देखिए, ये दो कंपोनेंट्स में इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये दोबारा इसका डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। दिस इज योर डायग्राम। So this is your diagram, right? And the axis is like this. This is the axis. अब दिस लोड, इस लोड को हम क्या करते हैं, दो एक्सिस हम क्या करेंगे, इसको ये जो लोड है इसको दो एक्सिस में हम इसको जैसे ये लोड था आपका, इसको दो एक्सिस में हमने क्या किया, ये आपका 60 डिग्री था और ये 10 किलो न्यूटन लोड है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये वाला लोड होगा, ये वाला दिस वन, ये जो वर्टिकल लोड है ये आपका होगा 10 किलो न्यूटन साइन 60 डिग्री, राइट। और ये आपका जो होगा दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लोड बिकॉज दिस लोड इज रिजॉल्व इनटू, ये जो कंपोनेंट था दैट इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, दैट इज वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपका जो कंपोनेंट होगा दिस इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन cos 60 डिग्री। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये दो लोड्स में हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया इन द टू लोड्स। अब देखिए, ये जो आपका मैं ये लिखता हूं 10, इसको समझिए 10 किलो न्यूटन साइन 60 डिग्री। अब दिस लोड इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, ये इसका एक्सियल एक्सिस है। इस एक्सियल एक्सिस के ऊपर ये लोड जो है ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है। यू अंडरस्टैंड। तो जहां से हमें क्या मिलेगा, हमें जहां से हमें एक्सियल स्ट्रेस, वी विल गेट द एक्सियल स्ट्रेस फ्रॉम हियर। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, सो दिस लोड से हमें मिलेगा, बिकॉज ऐसे लिख लो, द लोड इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस, राइट। ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्सियल एक्सिस लिख लीजिए, एक्सियल एक्सिस, राइट। तो ये लोड जो हमारा जो था वो एक्सिस के ऊपर एक्ट करेगा। तो जहां से हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट द
axial stress from here. We will get the axial stress. जो हमें axial stress होगी, क्या मिलेगा हमें? We will get the from this load, we will get कौन सी? एक्शियल कंप्रेसिव स्ट्रेस आप कह सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड? लेकिन दिस लोड इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। अब ये लोड जो आपका है ये एक एक्सिस से पास कर रहा है, इट मींस हमें एक्शियल कंप्रेसिव स्ट्रेस तो मिलेगा बट नो बेंडिंग स्ट्रेस। लेकिन हमें बेंडिंग स्ट्रेस इससे नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जहां से हमें एक्शियल स्ट्रेस, ये जो कंपोनेंट है लोड का 10 किलो न्यूटन साइन 60 डिग्री, जहां से वी विल गेट द एक्शियल स्ट्रेस बट वी विल नॉट गेट द बेंडिंग स्ट्रेस बिकॉज दिस लोड इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस। यू अंडरस्टैंड? अब सेकंड आ जाइए, सेकंड केस में। तो सेकंड लोड है आपका 10 किलो न्यूटन का 60 डिग्री। अब देखिए, दिस इज योर एक्सिस एंड दिस लोड इज एक्टिंग लाइक दिस। तो ये आप कह सकते हैं ये कौन सा लोड है? ये आपका ट्रांसवर्स लोड होगा। यू अंडरस्टैंड? ये कौन सा लोड है? दिस इज ट्रांसवर्स लोड। एक्सिस आपका जहां पे है और लोड जहां पे है। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका क्या होगा यहां पे? तो आपको इस लोड से यू विल नॉट गेट द एक्शियल स्ट्रेस। तो एक्शियल स्ट्रेस इस लोड से आपका क्या होगा? एक्शियल स्ट्रेस क्या होगा? 0 होगा। इस लोड से आपको एक्शियल स्ट्रेस नहीं मिलेगा बट बेंडिंग स्ट्रेस यू विल गेट। बट बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा, बेंडिंग स्ट्रेस बिकॉज ये लोड दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट होगा तो यू विल गेट द बेंडिंग स्ट्रेस फ्रॉम हियर। यस, तो बेंडिंग स्ट्रेस यू विल गेट। यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे आपने एक चीज को नोट किया, व्हेन द लोड is inclined on the column or any member, right? Directly we will not find the equation of the stress by using the inclined load. That load has to be resolved in two components, और जो दो component मिलेंगे, every component will give the different type of stress. ये जो component है, this component, ये आपका एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है। यू विल गेट द एक्शियल स्ट्रेस हियर। एक्शियल स्ट्रेस आपको मिलेगा लेकिन इसमें क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस नहीं मिलेगा। और ये लोड जो आपका है जहां से आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा बट एक्शियल स्ट्रेस नहीं मिलेगा। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमें एक्शियल स्ट्रेस निकालना है उसके लिए हमें लोड, जब हमें एक्शियल स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए हमें लोड लेना है ये वाला। यू अंडरस्टैंड? और जब हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है देन वी हैव टू टेक लोड दिस वन। यू अंडरस्टैंड? ये आपको क्लियर हो गया? एक्शियल स्ट्रेस निकालने के लिए वी हैव टू टेक लोड दिस लोड वी हैव टू टेक, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द बेंडिंग स्ट्रेस वी हैव टू टेक दिस लोड। यू अंडरस्टैंड? तो जहां तक द थिंग्स आर क्लियर, कैसे हमने किया, किस तरीके से किया, we have resolved the load in two components and one component of this load that is acting along the axis of this, so that will only give you the axial stress but no bending stress, and the other component of the load that is acting perpendicular to the axis that will give the bending stress but that will not give the axial stress. You understand? तो आप ये याद रखिए, जब हमने एक्शियल लोड एक्शियल स्ट्रेस निकालना तो ये लोड हम यूज करेंगे, और जब हमें ये बेंडिंग लोड निकालना है तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना तो ये हम लोड यूज करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो
इसको मिटा लेते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट क्या हमें कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा मैक्सिमम टी। यू अंडरस्टैंड? ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या फार्मूला होगा? सिग्मा मैक्सिमम टी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज द कंप्रेसिव लोड। कौन सा लोड है? ये कंप्रेसिव है। तो ये क्या आएगा? माइनस इक्वेशन माइनस पी अपॉन ए प्लस एम बाई मैक्स अपॉन आई। यू अंडरस्टैंड? एम बाई मैक्स अपॉन आई। So this is the equation we have to now put the value एक्सियल लोड के लिए। P हमने कौन सा लेना था? एक्सियल लोड के लिए P हम लेंगे ये वाला 10 किलो न्यूटन। जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू साइन 60 डिग्री, राइट? This is equal to minus, what is this? 10 into 10⁻³ sine 60 degree. And what is your area? Pi by 4 outer diameter square minus inner diameter square, right? Pi by 4, that is 100 square minus 75 square, right? Outer diameter and inner diameter plus what is your m? देखिए m इधर से निकालेंगे हम। m क्या होगा? m क्या है? this load, that is 10 cos 60 degree into 10⁻³, right? and what is your e? ये जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस कितना है? 600 mm। तो मूवमेंट इसका कितना होगा जहां पे? दैट इज इंटू 600। यू अंडरस्टैंड दिस? इंटू 600। तो पुट कर लीजिए वैल्यू 10, इसको इधर लिख लीजिए, साइन 10 cos 60 degree into 10⁻³ into 600 divided by वाई मैक्स। व्हाट इज वाई मैक्स? देखिए आउटर डायमीटर कितना है इसका, वाई मैक्स भी कैलकुलेट कर लो। वाई मैक्स, दिस इज आउटर डाया अपॉन 2, that is 100 upon 2, this is equal to 50 mm,
तो बाई मैक्सिमम आउटर डायमीटर से लेंगे, एक्सट्रीम फाइबर से लेंगे, यू अंडरस्टैंड, इनर डायमीटर से नहीं लेंगे। तो दिस इज 50 mm, दिस इज इंटू 50, एंड व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या होगा, पाई बाई 64 d4, कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4, दिस इज द फार्मूला। तो दैट इज 100 raised to power 4 minus 75 raised to power 4. So this is, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू अंडरस्टैंड। तो ये आप कैलकुलेट करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन। सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। So my value is 42.13 MPa. 42. So sigma maximum tension, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, 42.13 MPa। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि आपके सीधे क्वेश्चंस तो होंगे इसमें कॉलम में, या सीधा लोड आपका एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है, just like that, but this is a typical question which is given here. This is an important one also, because here the load is inclined. लोड आपका इंक्लाइंड था, तभी तो हमें, जहां पे लोड इंक्लाइंड है बट एक्सिस के ऊपर है, यू अंडरस्टैंड, तभी तो हमें इन दिस केस में हमें क्या मिला, नॉर्मल स्ट्रेस में मिला और बेंडिंग स्ट्रेस में मिला। अदरवाइज हमें नॉर्मल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ता कि लोड दैट शुड नॉट एक्ट ऑन द एक्सिस बट दैट शुड एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस, अवे फ्रॉम द सेंट्राइड। सो इन दैट केस देन वी विल गेट द normal stress as well as the bending stress. But here the load is acting on the axis, but the load is inclined. Load is inclined, but it is acting on the axis. So in this case also we will get the axial stress as well as the bending stress. How it is? This I have told you. We just resolve this load in two components. One horizontal component and one is the vertical component. Vertical component जो है that will act along the axis of the column, so that load will only produce the axial stress, that will not give the bending stress because it is acting along the axis, you understand. But the second component, that is the horizontal component, that is not acting on the axis, that is a transverse load, and that will produce the bending stress here. But axial stress इस केस में क्या होगा, वो नहीं होगा। तो जहां पे जो क्वेश्चन का था, जहां पे आपने देखा कि इंक्लाइंड लोड होने के कारण हमें जो दो लोड इसके रिजॉल्व करने के बाद मिले, सो बोथ द लोड्स आर हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वन लोड हैज गिवन द बेंडिंग स्ट्रेस एंड द अदर लोड हैज गिवन द एक्सियल स्ट्रेस, यू अंडरस्टैंड। तो ये एक सिर्फ दिस इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ये था। रेस्ट तो इक्वेशन में सारी चीजें आपने सब्स्टिट्यूट की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो आपको जो सर्कुलर जो कोई भी चीज है, कोई भी मेंबर है, सर्कुलर मेंबर का अगर हालो मेंबर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/64 इंटू d4 माइनस स्मॉल d4, d4 दैट इज द बिगर डायमीटर and small 4 that is the small d that is the smaller diameter, you understand. तो ये हमने निकाला, बाई मैक्सिमम की वैल्यू हमने निकाल ली, बाई मैक्सिमम हमें दिया था, that we have calculated, बाई मैक्सिमम हमारा कितना है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके so ultimately we got the problem, right? So this is very important problem.
So you must write down and you must learn it very minutely, you can say very, इसको ध्यान से पढ़ें, देखें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, यू अंडरस्टैंड। तो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। So this is a very important and very conceptual problem. A column of circular section of dia D is subjected to a eccentric load. Find the maximum eccentricity E. हमें क्या निकालना है? Maximum eccentricity E. So there is no tensile stress. This is the point. In the cross section, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आपका कोई क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। सो लेट अस अज्यूम ए कॉलम, हम एक कॉलम ले लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम द कॉलम हियर। And this is the axis, this is the axis of the column, you understand, and load is acting at some distance from E here. तो ये आपका जो लोड है, सपोज लोड इज एक्टिंग हियर लाइक दिस, ये लोड आपका E ये कॉलम से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, से द डिस्टेंस इज E, राइट। तो क्या करते हैं हम? वी विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या मिलता है? ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफर द लोड, हम क्या करेंगे? ट्रांसफर द लोड ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या मिलेगा हमें? एक तो हमें मिलेगा लोड P और सेकंड हमें क्या मिलेगा? मूवमेंट, दैट इज P इंटू E। ये दो चीजें हमें मिलेंगी, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका कंडीशन हो गया। यू अब देखिए, हमें दिया है कि वी हैव टू फाइंड द सेंट्रिसिटी व्हेन देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस। जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगा तो वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम सेंट्रिसिटी E। तो देयर अराइजेज द थ्री कंडीशन। सपोज मैं कहता हूं कि जहां पे थ्री कंडीशन, देयर अराइजेज the three conditions, राइट। देखिए फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, तो फर्स्ट मैं कंडीशन लेता हूं, देखते जाइए। फर्स्ट कंडीशन है आपका कंप्रेसिव लोड लेते हैं ये, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन, इसको ऐसे कर दीजिए।
वी हैव टू टेक द कंप्रेसिव लोड, इधर से लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन में कंप्रेसिव लोड, इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करो ये आपका -100, राइट। ये कंप्रेसिव लोड क्या है? दिस इज -100 प्लस, अब दूसरा इसमें ले लीजिए, ये कर लीजिए 120 MPa। ये आपकी आ गई सिग्मा एक्स P अपॉन A, राइट, प्लस M बाई मैक्स अपॉन I, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस मैंने लिया। अगर ये पहली कंडीशन हो मींस कंप्रेसिव स्ट्रेस P अपॉन A लेस देन सिग्मा एक्स, जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है उससे कम होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, उसमें देखिए दिस इज 120 एंड दिस इज 100, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका इधर से 20 होगा, राइट, और इधर से भी आपका क्या होगा, ये आपका कितना है, ये आपका 120 आ गया इधर से, और ये आपका 100, ये 220 बन गया, तो ये आपका सपोज करो ये आपका बन गया इधर तक। You understand this? 120 plus 100. So this is like this. राइट, मीन्स ये आपका इधर से बन गया 20 MPa और ये बन गया आपका -220 MPa, राइट। ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी M बाई मैक्स अपॉन I ग्रेटर देन P अपॉन A, ये फर्स्ट कंडीशन मैंने ली, राइट, ये फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन मैं लेता हूं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि ये इक्वल है, सेकंड कंडीशन में क्या है, इक्वल है, तो इसमें अगर सेकंड कंडीशन में आपका इक्वल है, ये आपका 100 है,
राइट। जे आपका -100, कौन सा? जे आपका आ गया P/A, राइट, प्लस, अब दूसरा ले लीजिए, दोनों को बराबर रखते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? तो जे भी आपका अगर 100 है, ये कितना है? जे भी आपका 100, राइट। बेंडिंग स्ट्रेस और जे दोनों हमने क्या किया? इक्वल किया। तो इस केस में जो आपका आएगा, जे कितना है? -100 टॉप में, जे +100, ये ऊपर क्या आ जाएगा? 0, राइट। और नीचे कितना होगा? -100 और -100 200। तो इट इज लाइक दिस। जो ये डायग्राम बनेगी, इसमें आपने देखा कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस राइट। इसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या है इस केस में? इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आपका 0 आया, राइट। और जे कितना आ गया? जे भी 100 था, जे आपका -200 आ गया, राइट। ये सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन अगर इसकी लेता हूं, इस केस में क्या आया जी? ये था कि अगर m/max/I दिस इज इक्वल टू P/A। जब ये बराबर था, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू द एक्चुअल स्ट्रेस, तब आपका ये आया इस तरीके से। राइट। अब मैं करता हूं कि इसको, जो एक्चुअल स्ट्रेस है, थर्ड कंडीशन लेता हूं मैं, इसको उससे ज्यादा कर लेता हूं, राइट। इधर कर लेते हैं इसमें थर्ड। जे तो ऐसे ही रहेगा, ये आ गया, केस थर्ड ले ले। -100, राइट। ये क्या था? P/A प्लस,
ये मैंने ले लिए 80 और ऐसे इस केस में क्या बनेगा, इस केस में आपका बनेगा दिस इज इक्वल टू, ये कितना -100 प्लस 80, ये आपका आएगा -20, राइट। और ये भी -100 है, ये आएगा -180, राइट। तो इस केस में अच्छा, इस केस में भी जो आपने लिया था केस थर्ड में क्या लिया था, m by x upon a लेस देन p अपॉन a, राइट। अब देखिए ये तीनों चीजें आ गई। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंग्स आर क्लियर नाउ, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। दिस इज क्या था, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज जहां पे क्या होगा, जब इस किस्म की कंडीशंस होगी, कोई भी आपका कॉलम है और आपका लोड जो है वो सेंट्राइड के ऊपर नहीं एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंट्राइड, तो हमारा क्या होगा, दो टाइप की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, दैट इज एक्शियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड। हमें को वो कहता है कि हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड दैट द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी E, so there is no tensile stress in the cross section। हमें मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है कि लोड जो है वो सेंट्राइडल एक्सिस से कितनी दूरी के ऊपर है, बट कंडीशन क्या है कि आपका क्रॉस सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। उस चीज को चेक करने के लिए कि अगर हम ये तीन कंडीशंस लेते हैं, पहली कंडीशन मैंने लिया कि अगर आपका m by max upon I बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज ग्रेटर देन नॉर्मल स्ट्रेस हो, उस केस में क्या हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस 0 होगा क्रॉस सेक्शन में। जो मैंने एक अज्यूम कर लिया फिगर के ये मेरा P अपॉन A है, तो मैंने कर लिया कि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारी कितनी है, 100 MPa, क्योंकि ये आपका क्या था, दिस इज लेस, और ये मैंने आपका इसकी वैल्यू मैंने इससे ज्यादा ले ली, दैट इज 120 MPa। यू अंडरस्टैंड। और जब इन दोनों को मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आई, तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आप देखेंगे कि अगर आपका इसमें ग्रेटर होगा तो उसमें क्या होगा, तो अगर ये क्या होगा, ये अगर आपका ग्रेटर होगा, यू अंडरस्टैंड, अगर ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो जहां पे अगर आप देखेंगे तो जहां पे क्या कि जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आपकी 0 नहीं है, जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस कितना है 20 MPa आया। यू अंडरस्टैंड। तो पहले केस में अगर मैं ये कंडीशन लेता हूं m by max upon I ग्रेटर देन P upon A, तो उस वक्त हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या होगी, क्रॉस सेक्शन में 0 नहीं होगी। नाउ यू कम टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया कि ये आपका जो सिग्मा एक्स की वैल्यू थी और बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू थी, दोनों वैल्यूज को मैंने आपस में क्या किया, बराबर रखा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रखा, और जो टोटल स्ट्रेस इसमें फाइंड आउट किया, बट वी हैव फाइंड आउट हियर, हमें जो व्हाट वी हैव फाउंड हियर दैट इसमें जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस थी वो क्या है, 0 है,
क्रॉस सेक्शन में जो टेंसाइल स्ट्रेस आया टोटल वो कितना था, 0 है, लेकिन आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इस केस में आपका जब मैंने m बाई मैक्स अपॉन आई दिस इज इक्वल टू P अपॉन A लिया, तो इस केस में क्रॉस सेक्शन में हमारी जो स्ट्रेस थी वो कितनी निकली, 0, राइट। अब मुझे अब आइए इस केस में, इस केस में जो हमारा है ये -20 एंड -180। तो अगर इस केस की थर्ड कंडीशन में मैंने लिया कि अगर मेरा m बाई मैक्स लेस देन P अपॉन A था, जहां पे इक्वल है जहां पे लेस देन लिया मैंने, ये P अपॉन A का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया 100, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस मैंने लिया 100 के ऊपर, तो ये मेरा इसमें आ गया, फिगर हमारी इस तरीके से आ गई। और दूसरा मैंने मैग्नीट्यूड लिया बेंडिंग स्ट्रेस का 80 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये कंप्रेसिव नेगेटिव होगा, यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में देखिए आप, इसमें देखिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है इस केस में दोनों टॉप और बॉटम में हमें कंप्रेसिव टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, लेकिन इस केस में वी विल नॉट गेट द टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस केस में भी हमें टेंसाइल स्ट्रेस नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, 0 है। इस केस में भी टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, 0, यू अंडरस्टैंड। तो जहां से आप कह सकते हैं, क्या आपकी इक्वेशन बनती है, व्हाट योर इक्वेशन इज दैट, जहां से क्या कंक्लूजन करता है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस अब आपकी कब, अगर मैं ये कंडीशन लेता हूं m बाई मैक्स अपॉन आई लेस देन आर इक्वल टू P अपॉन A, अगर इफ आई विल टेक दिस कंडीशन देन यू कैन से हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी इस कंडीशन में जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, 0 होगी क्रॉस सेक्शन में, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस इज 0 इन द क्रॉस सेक्शन, अगर ये कंडीशन में लेता हूं, राइट। इफ आई विल टेक दिस कंडीशन तो हमारी ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी, 0 होगी। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, m क्या होगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा लेते हैं इधर से। तो m हो गया आपका, m इज इक्वल टू P इंटू ई, राइट। तो बाई मैक्सिमम क्या होगा इसमें, बाई मैक्स dy/2 इफ d इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम, और I क्या होगा, π/64 इंटू d4, राइट, π/64 इंटू d4। सो पुट द वैल्यू हियर, इसमें ये वैल्यू पुट कर लीजिए, m की जगह क्या आया, P इंटू ई बाई मैक्स d/2 π/64 इंटू d4 लेस देन आर इक्वल टू P तो P ही रहेगा, और एरिया क्या है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करें एंड यू विल गेट E इज इक्वल टू, जो E की वैल्यू इसमें आएगी, E लेस देन आर इक्वल टू d/8, E इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू d/8। तो जब आपकी टेंसाइल स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में 0 होगी, उस वक्त आपकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो लेस देन आर इक्वल टू d/8 होगी। कहने का मतलब कि अगर ये आपका कॉलम है, इफ दिस इज योर कॉलम
राइट। अगर ये आपका कॉलम है तो E की जो वैल्यू होगी वो D/8 कहां पे होगी? आप इसको सर्कुलर कॉलम में ले लीजिए। अगर आपका सर्कुलर कॉलम है, सपोज दिस इज योर सर्कुलर कॉलम लाइक दिस, राइट। और तो ये आपका जहां से लेके जहां तक जो एरिया है, ये आप कह सकते हैं D/8, राइट, D/8। सो दिस इज योर D/8। तो ये आपका जो D/8 है, दिस इज कॉल्ड, जहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण भी बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, KERN, वेयर द टेंसाइल स्ट्रेस इज 0, राइट। सो दिस area is known as core or kern, right? This area is known as, ये जो एरिया है, this area is known as core or kern। तो ये जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम के बीच में आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम रिंग वगैरह लगाते हैं और उसके बीच में ये कंक्रीटिंग वगैरह बढ़ते हैं। तो उसका ये है कि ये जो एरिया होगा इतना, जिसका जो आप डायमीटर लेंगे D/8, अगर इफ D इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम, तो ये जो आपका सेंटर में जो D/8 जो एरिया होगा, जो आपका D/8 जो एरिया होगा, जहां से सेंट्रिसिटी कितनी है, E D/8, तो जो ये एरिया बनाएगा आपका, जहां पे आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या होगी, 0 होगी। टेंसाइल स्ट्रेस जहां पे क्या होगी, 0 होगी, जहां पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगी। तो ये जो एरिया है हमारा कॉलम में, जिसका सेंट्रिसिटी D/8 है, उस एरिया को हम बोलते हैं कोर और कर्ण। यू अंडरस्टैंड? दिस इज ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू। दिस क्वेश्चन परटेन्स टू कॉलम्स आल्सो। ये जो कॉलम एंड स्ट्रेस का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो ये दिस क्वेश्चन परटेन्स टू दैट, कि व्हाट इज कोर, व्हाट इज कर्ण, लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड? तो कोर और कर्ण क्या है कि सेंटर से आपका जो सेंट्रिक डिस्टेंस है D/8 अगर होता है, तो उस एरिया में जितना भी एरिया फॉर्मेशन होगा, जहां पे जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या होगी, 0 होगी, वो नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए आपके, वेरी कंसेप्चुअल वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और उसका डिज़ाइन भी पढ़ेंगे हम, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, कि अगर कोई आपको बीम दिया है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है बीम का, बीम ऑफ यूनि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, और उसका अगर हमें डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से बीम को हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लेके आएंगे, कि ये आपकी जो बीम है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को पहले ही, स्टूडेंट्स को मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो जो मेरा लेक्चर होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे आप देखिएगा। यू अंडरस्टैंड? सो थैंक यू वेरी मच।